Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are all passing a happy life. Today we start the listening part 2. You can see the screen. IELTS with Zakro. IELTS listening part 2 with Zakro. First of all, before starting the lesson, I suggest to my viewers, my students, please subscribe my YouTube channel. Zakro hides in IT Studio. I want to bring for my student a very well lecture and very well fruitful lectures for my students. So after that, today we start the lecture first, and the lecture first we study that IELTS listening part 2. Okay, so what is IELTS listening part 2? We straightforward we study the lesson. Okay, don't be waste of time. Okay, so what's listening part 2? In this class, I just introduce the listening part 2. Okay, not a whole totally. On that lesson, we just introduce part 2 and some strategies I given to my students here, but this is not a complete strategy. Okay, we when we study the IELTS listening 48 type questions, and this in this lesson it will be given to you other strategies, and these strategies will be very fruitful for my students. So today is a next lecture, just an introduction of the part 2. What is part 2? And the characters of the part 2, and the including questions in the part 2. Okay, so just we start a lecture. Okay, so IELTS listening part 2. What is IELTS listening part 2? And listening part 2, it's so different because of this. It's so easier than part 3, part 4, and so difficult than part 1. Okay, so in part 2, it's a monologue. Okay, you just remember in your mind, it's a monologue. Okay, one person they speak here. Okay, one person they speak here. It usually about part 2 is usually about a local facility or services. You just see the screen. A tourist attraction, a public event, a course of or programs, a place of description. Okay, these type of topics the user they speak on that. Okay, ओके इसमें हमारे साथ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मली जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पार्ट 2 में तो 11 से 20 तक होंगे, ठीक है। तो जब मैंने पहले बताया कि डिफिकल्टी का जो लेवल है ये है कि ये मीडियम है। मीडियम मीन के पार्ट 1 से थोड़ा सा सख्त है, लेकिन पार्ट 3 पार्ट 4 से बिल्कुल जो है ना इजी है, ठीक है ना। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट मैं इस 4 पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और इसके दरमियान भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजी दूंगा। बिफोर एंडिंग दैट कलच दाश खत्म शी। आफ्टर दैट फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसमें जो 14 टाइप की जो क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस को एक एक करूंगा, एक एक पे हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, कॉमन जो है ना आइट्स क्वेश्चन इसमें होते हैं। कॉमन क्वेश्चन जो इसमें होते हैं आते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक स्पीकर वंस अ टाइम जो है ना इसमें आपको बातें नजर आएंगे एक यूजर की। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगी। द यूजर टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल what's the main purpose of the library tour? What's the main purpose of the library tour? This is a question, okay? Number 8, to explain our library rules, to introduce a new student, okay, to advertise membership. These are the 3 multiple choice, but the correct answer is one of them, okay? So first of all, you read the questions before and then, okay? So the question type
include in part 1 depend on the luck is multiple choice questions. Okay, first up इसके स्ट्रेटजीज क्या है? मल्टीपल, अगर इसमें हमारे साथ मल्टीपल चॉइस आ जाए तो स्ट्रेटजी बिफोर, सम स्ट्रेटजीज क्या है? रीड द क्वेश्चन बिफोर लेसन, क्वेश्चन को रीड करना है, कंप्लीटली रीड करना है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। आपने क्या करना है? कीवर्ड्स, लाइब्रेरी टूर, लाइब्रेरी टूर पर्पस में इस चीज को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। लिसन फॉर सिनोनिम्स नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और ये चीज है आपने सिनोनिम का ख्याल रखना है, क्योंकि आइट्स टेस्ट जो है ना और सिनोनिम लवर है, ठीक है ना, सिनोनिम का खास ख्याल रखना है। एंड बी केयरफुल टू डिस्ट्रक्टर, रॉन्ग ऑप्शन मेंशन बाय द स्पीकर। आपने ये भी करना है, इसमें एक स्ट्रेटजी यूज होता है वो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन आपने बस जस्ट ये 4 स्ट्रेटजी अपने साथ जो है ना आपने राइट करना है। इसमें हम बाद में करेंगे, एक प्रो स्ट्रेटजी मेरे साथ है, प्रो आपको मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये 4 स्ट्रेटजी अभी काफी है, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। दूसरा आपकी लक पे डिपेंड करता है कि इसमें आ जाए मैप लेबलिंग। मैप लेबलिंग एक क्वेश्चन टाइप है, ठीक है ना, जिसमें आपने इस मैप को देखना है। इसमें आपको एक ब्लैंक्स देंगे होंगे, ठीक है ना, ब्लैंक्स। इसमें आपने इसको जो है ना एक्चुअल टेस्ट में ड्रैगिंग ड्रैग कहते हैं, इसमें इसको आपने ड्रैगिंग ड्रैग करना है और प्रैक्टिस टेस्ट में आपने इसमें लिखना है, ठीक है ना। तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कंप्लीटली। आपने मैप में हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट को जो है आइडेंटिफाई करना, ए है, बी है, सी डी, इसमें अपने फाइंड करना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है अपने नॉर्थ वेस्ट, ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अपोजिट, नेक्स्ट, बिहाइंड, फ्रंट, इन चीजों को आपने याद करना। ये मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन ये आपने पहले से ये जो है ना ये जो वोकैबुलरी आपने अपने साथ नोट करवाना है कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, वेस्ट, अपोजिट, नेक्स्ट, बिहाइंड, फ्रंट, बिटवीन, ओके। ये स्पीकर इसमें ये बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपने फिर बाद में इसको करेंगे, ठीक है। लर्न डायरेक्ट वोकैबुलरी, आपने डायरेक्ट वोकैबुलरी को लर्न करना है। इसमें स्पीकिंग फॉर एग्जांपल ऐसे कहेंगे कि इसमें जो है अपने दरमियान वाले में कहना है कि oh well the car is enter on A and they straight away going to the D and they stand behind the school road. So behind the school road and behind the school road and opposite of the school and the front of supermarket is E. Okay, so in the speaker they speak like that, but it will be C in the practice. Okay, so question type 2 is map labeling. Question type 3 plane labeling. Plane labeling, इसमें प्लेन आएंगे, प्लेन लेबलिंग, रूफ, बिल्डिंग्स, ये तो मैप जैसा है, ठीक है, लेकिन प्लेन है, ठीक है ना। अपने लेबलिंग करना है। स्ट्रेटजी ये है कि अपने चेक द रूम नेम बिफोर एंड फोकस द लोकेशन लैंग्वेज, इन चीज़ों का अपने फोकस करवाना है। लेकिन मैं ये सिर्फ क्वेश्चन टाइप में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो 14 टाइप क्वेश्चन है ये एक टाइप क्वेश्चन है, लेबलिंग एक टाइप क्वेश्चन, इसको हम फिर करेंगे। इसमें जो मैचिंग इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंफॉर्मेशन में हमारे साथ 4-5 टाइप इंफॉर्मेशन है, ये हम करेंगे। लेकिन एग्जांपल के साथ हम इसको इसे करेंगे कि मैच एक्टिविटी सच अ लोकेशन, ओके, like the strategy about that, predict the possible answer, listen for paraphrasing and cross out the completed option. Okay, so ये सिर्फ क्वेश्चन टाइप है पार्ट 2 में, ठीक है ना। सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे इसमें, इसको भी करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन टाइप है नोट कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ओके, एंड टेबल कंप्लीशन इसमें आता है, इसको हम करेंगे। ये नोट कंप्लीशन आ गया, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर पार्ट 2। आप लोगों ने इस चीज को अपने साथ नोट करवाना है, क्योंकि ये चीजें मैं फिर वहां पर नहीं करूंगा, अगर करूंगा भी तो थोड़ा सा करूंगा। आपने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को अपने साथ नोट करवाना है, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए क्या, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट अहेड, अपोजिट, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, बिटवीन, कॉर्नर। ये जो स्पीकर है ये डायरेक्शन के लिए ये वोकैबुलरी यूज करेंगे, ठीक है ना।
पब्लिक प्लेस के लिए लाइब्रेरी, म्यूजियम, गैलरी, रिसेप्शन, एंट्रेंस, एग्जिट, कार पार्किंग, कैफे, ये चीजें स्पीकर जो है ना मोस्टली यूज करते हैं। इवेंट के लिए फेस्टिवल, एग्जीबिशन, वर्कशॉप, सेमिनार, टूर, ये चीजें यूज कर रहे होते हैं। या अपनी चीजों को अपने दिमाग में रखना है, बस पार्ट 2 में ये चीजें आती है, ठीक है ना। ये जस्ट पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन है। ये कॉमन ट्रेप्स है लिसनिंग पार्ट 2 में, ठीक है। ये जो स्पीकर आपको ट्रैप कर रहे होते हैं ना, ये कॉमन ट्रैप्स है। इसमें स्पीकर का काम क्या है? आपको जो है ना कंफ्यूज करना, है, ठीक है ना। ये लिसनिंग जो है ना, ये सिर्फ सुनने का टेस्ट नहीं है कि बस आपने सुन लिया और हो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। आपने सुनना भी है, लेकिन प्रिडिक्ट करना है, आपने चीजों को सॉल्व करवाना है। तो ट्रैप फर्स्ट क्या है? स्पीकर चेंज इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ऐसा ट्रैप है जो 99% आता है, और स्पीकर आपको जो है ना वो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें स्पीकर बोलेंगे the tour starts at 8:30, actually it has been changed to 9. So you see, मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब मैं एक दिन प्रैक्टिस टेस्ट कर रहा था, तो इसमें लिसनिंग पार्ट 1 में ऐसा हुआ, पार्ट 1 ऐसा कुछ आ गया। इसमें उन लोगों ने मुझे ट्रैप किया। उन्होंने 3 ऐसे वर्ड बोले, उसने से बोले थे। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं। The tour start at 8:30, but actually it has been changed to 9. But some of the decisions of the owner, they changed to 8 p.m. So they changed to 8 p.m. So the actual answer is 8 p.m. But here, I given to example, the tour starts at 8:30. Actually, it has been changed to 9. So the actual answer has 9. Okay, they changed. So for that they trap you. Second trap क्या है? Second trap, similar option. Monday, Tuesday, Wednesday, similar option आएगा। The speaker may mention all of 3 days. Listen the final answer. आपने मल्टीपल चॉइसेस और ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि बाज़ औक़ात स्पीकर जो है ना ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये चीज़ें बोलते हैं, लेकिन इसमें एक प्रो टिप है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर बाद में भी इसको सॉल्व करेंगे। बट बट एक ऐसा दुश्मन है कि इन चीज़ों में ये काम कर रहा है, सिमिलर ऑप्शंस में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। द स्पीकर स्पीक दैट I went to Lahore on Monday and Tuesday, but I was visit to Faisalabad on Wednesday. But यहाँ पर बट का लफ्ज़ आ गया तो सारा चीज चेंज होगी और वेंसडे ठीक होगी। तो ऐसे आप लोगों को ये ट्रैप करेंगे, ठीक है ना। आपने बस फाइनल आंसर को लिसन करना है और अपने जो चीज़ है अपने उसको देख लेना है, ठीक है ना। बाद में ये चीज़ें हम करवाएंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से। ट्रैप 3, सिनोनिम्स। आपने सिनोनिम्स को प्रो करना है, ठीक है ना। सिनोनिम्स को इस तरीके से प्रो करना है कि आपने सिनोनिम्स के पीछे भागना है और इसको आपने जो है ना बिल्कुल एनहांस करना है। बाज़ औक़ात स्पीकर चीप के जरिए इनएक्सपेंसिव बोल देते हैं तो आपका दिमाग चला जाता है, फिर आपसे ये लफ्ज़। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना मास्टर करना है। इसमें आइट्स का जो रूल्स है वो अपन डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं ना। आपने देखा होगा कि आइट्स के जो एग्जाम्स होते हैं ना, मोस्टली मैंने तो एग्जाम दिया है, मुझे तो पता है कि ये लोग क्या कर रहे होते हैं लेसन में। तो आइट्स लोग कह रहे कि आइट्स टफ होता है, तो वजह तो ये सिर्फ ये है कि इसमें सिनोनिम्स है, ठीक है। ओके ये जो स्ट्रेटजी मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ ना, ये बिफोर वी स्टडी द
Question type, you master these things. But you just listen these things and just write to yourself. Read instruction, check word limit, underline keywords, predict your answer type. बस इन चीजों को आपने लिखना है. While listening, follow the questionnaire. Focus on keyword, listening, signposting words. इसमें जो signposting words होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं. First, next, then, finally. आपने इन चीजों को देखना है, ठीक है ना.